Tron is a device developed by E.O. Lawrence and M.S. Livingston in 1934. It is used to accelerate charged particles like protons and neutrons. This results in production of high energy charged particle. In nuclear physics, such energized particles are used to bombard nuclei causing nuclear reactions. A positively charged particle can be accelerated to high energy with the help of an oscillating electric field by making it cross the same electric field time and again with the use of a strong magnetic field. Two hollow half cylinders made of high conductive metals known as Ds are so placed that the straight edge will be face to face with a small gap between them. Now these two Ds are connected to two terminals of an alternating voltage source, an oscillator. It would help in changing polarity. If D1 is in the positive potential, then D2 will be in exact opposite, that is negative potential at the same time. In this way, they would be oscillating and an electric field would be created between them. One electromagnet is kept below the two Ds and one electromagnet is kept above the Ds. Bottom electromagnet will have north pole above and top electromagnet will have south pole below. This would create a magnetic field perpendicular to the direction of the electric field. This entire arrangement is sealed in a vacuum box. The two Ds create an electric field. The direction of electric field is horizontal. The direction of magnetic field is vertical. When we place a positively charged particle, which may be a proton or a combination of proton and neutron both, since D1 is positive, D2 is negative, there is an electric field between them. Now a force acts upon the charged particle and its direction would be the direction of E. Because of this force, the charged particle gets acceleration, and because of acceleration, the speed increases till it enters the D. Since D is an enclosed container, so the value of electric field is 0. So force becomes 0 and acceleration becomes 0. So inside the container there is no electric field, but there is magnetic field and its direction is north. The charged particle now moves perpendicular to the direction of the magnetic field. It experiences a force in a direction perpendicular to the plane containing V and B. This force provides the centripetal force and makes the charged particle move along a circular path of radius r is equal to mv upon q times b. The particle makes a semicircle and comes to the gap. The time taken is t by 2. Because if the time taken to complete one circle is t, then the time taken to complete semicircle would be t by 2. As soon as the particle comes to end, it is influenced by electric field. When the particle was born, its velocity was 0. When it enters the D, its velocity is v and it is constant because the magnetic field cannot change the velocity. The oscillator will change the polarity. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle to V1. When it enters D2, the velocity would remain constant. Now D2 becomes
positive and D1 becomes negative. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle. The particle would now move from D2 to D1 because its velocity would increase to V2. When it enters D1 again, the velocity would remain constant because the magnetic field cannot change the velocity, but the particle would make a greater semicircle because it is coming inside the D with a greater velocity. When it comes out of D, it comes under the influence of electric field. Once again, the electric field accelerates the charged particle and now the velocity becomes v3. In this way, the particle moves in a circular path, and with each circle, the velocity of the charged particle increases. If the velocity of a charged particle increases, the radius of the charged particle would also increase. Finally, when the particle has no more space to grow in radius, it is thrown out through a window. With such a high velocity, the particle has high energy and it hits the target. तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप फटाफट सारा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं फार्मूलाज देख लेते हैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आता है, बिकॉज 2018 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड, वो कुछ एनर्जी से कन्वर्ट करके वो पूछा गया था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दे दिया गया था। चार्जेस दे दिए जाते हैं और मासेस दे दिया जाता है और बोलते हैं कि किसका रेडियस ज़्यादा होगा। अगर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इतना हुआ है, इलेक्ट्रॉन इतना हुआ और न्यूट्रॉन का इतना हुआ। तो बाय द वे साइक्लोट्रॉन का एक लिमिटेशन है कि ये नॉन चार्ज्ड या अनचार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाता लाइक न्यूट्रॉन, और नॉट यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल मास। बट ये जो फार्मूला है वो फार्मूला से रिलेट करके आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सारा फार्मूला देख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ traversed by the charge r equal to mv by qb, time taken by the charge to complete the semicircle t equal to pi m by qb, time period t by 2 equal to t, जैसा आपने वीडियो में देखा था कि t जो हम लोगों का सेमी सर्कुलर का होता है वो t by 2 होता है, ठीक है, इक्वल टू पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड ऑफ द साइक्लोट्रॉन या जो भी उस पार्टिकल को लगेगा वो होगा टी इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। प्रोटॉन होता है उस साइक्लोट्रॉन में। उस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आर इज रेडियस एंड एम इज मास, क्यू इज चार्ज एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2m। तो ये फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। टोटल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज ड्यूरिंग इनकम्प्लीट रिवोल्यूशन, अगर रिवोल्यूशन का वो पूछता है तो E t इक्वल टू 2n इंटू क्यू वी। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस टू विच द चार्ज इज सब्जेक्टेड एवरी टाइम इट इंटर्स अ डी। 2n क्यू वी इक्वल टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम मैक्स डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ई टी का वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं। n इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m, ठीक है। वी एम, वी क्या है, पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम रेडियस। और लिमिटेशन जो मैंने बताया कि नॉट यूज्ड और एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल मास। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है अ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी इज 10 mg, ठीक है, सॉरी मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है हम लोगों का। तो v इक्वल टू हो गया हम लोगों का v मतलब म्यू इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज 10 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है, इक्वल टू 10⁷ हर्ट्ज, ठीक ना। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रेडियस इक्वल टू 0.60 मीटर दिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी भी पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है। तो हम लोगों का रेडियस कितना हो गया, रेडियस 0.6 हो गया, ठीक है, मीटर। और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो ½ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे समझो रेजोनेंस के लिए हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, QB/2πm, ठीक है। ये हम लोग आएंगे, ये वेलोसिटी जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो आराम से समझो कैसे क्या करना। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू QB/2πm, B इक्वल टू 2πm इंटू म्यू डिवाइडेड बाई, और हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 1.67, मास भी दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई ये 10⁻7, ठीक है, डिवाइडेड बाई ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 अगर ऊपर की तरफ भेजेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। सारा कुछ कैलकुलेट करो, 3 to 6 6.28 इंटू ये ऑन एन अप्रॉक्स हटा दो तो मतलब 0.66 के करीब आएगा, ठीक है, -2 6.28 समथिंग ऑन एन अप्रॉक्स, और इसे करोगे तो यहाँ पे x आएगा, तो कुछ करके आपका आएगा +10⁻⁻2, मतलब ऑन एन अप्रॉक्स 0.628 आएगा, और ये जो बचेगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल आंसर 0.66 के करीब आएगा टेस्ला, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों से क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोगों का क्या हम लोगों ने पढ़ा है, Q² B² R² डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। ये देखा था ना हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज इक्वल टू Q² B² R² बाई 2m। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। Q निकला हुआ है, Q हम लोगों का अगर इस तरीक़ा से करते तो हम लोगों को V निकालना पड़ता, पर V हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, समझे। काइनेटिक एनर्जी Q हम लोगों का दिया हुआ है, चार्जेस कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। बी हम लोगों ने निकाल लिया 0.66 का होल स्क्वायर इंटू आर भी हम लोगों का 0.6 दिया हुआ है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। ये सारा कुछ कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप आप लोगों को साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला, साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, और जितने भी न्यूमेरिकल है सारा सॉल्व कर लेना जेईई मेंस और नीट के, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।